اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، اس کا مطلب ہے زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی گفتگو ہارڈ ہو، لیکن اگر آپ اپنی توجہ بنا کے رکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور ایک اچھی گفتگو آپ کو سننے کو مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ قسم کسی بات کو مضبوط بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اپنی بات کی حقانیت، اپنی بات کو خوب مضبوط بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ سب سے پہلی بات والعصر، زمانے کی قسم، تو یہ محاورہ ہے، لوگوں کی چونکہ عادت ہے، لوگوں کی طبیعت ہے کہ یہ قسم کے ذریعے کوئی بات کہی جائے نا تو وہ زیادہ توجہ دیتا ہے، زیادہ کان لگاتا ہے، زیادہ یقین کرتا ہے، ورنہ اللہ کی ہر بات یقین والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قسم کی ضرورت ہی کہا ہے۔ مگر چونکہ ایک لوگوں کی ایک طبیعت ہے، عادت ہے، ایک فکر ہے، لوگوں کی ایک سوچ ہے، ایک آپسی بول چال میں ایک ماحول ہے، اسی لیے اللہ نے والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ اچھا، انسان کہاں ہے؟ اب انسان میں چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو یا کرسچن ہو، کسی بھی دین دھرم سے ہو، یہاں تک سارے لوگ خسارے میں، یہاں تک یہ پوری صورت پہ آج ہم بات کریں گے، لیکن ان الانسان لفی خسر، یہاں تک ابھی سب گھاٹے میں ہیں، مسلمان بھی گھاٹے میں ہیں، پر گھاٹے سے نکلے گا کیسے؟ اس کے لیے قرآن نے 4 باتیں رکھی ہے کہ جو ان 4 باتوں پر عمل کرے گا، جن کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی، وہ شخص اس خسارے سے، گھاٹے سے بچ جائے گا۔ اور اگر کچھ پر عمل کر رہا ہے، کچھ پہ نہیں کر رہا ہے، کچھ باتیں پائی جا رہی، کچھ نہیں پائی جا رہی ہے، تو کچھ خسارے سے بچ رہا ہے، کچھ خسارے سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ وہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہاں زمانے سے مراد کیا ہے؟ عصر کا ایک معنی وہ بھی آتا ہے جو وقت ہے، ظہر عصر، وہ بھی عصر ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ صحیح جو مفسرین نے جو بات بتائی، جو سب سے مضبوط بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں زمانے سے مراد سرکار کا زمانہ ہے، کہ اللہ نے سرکار کے زمانے کی قسم کھائی، حضور کے زمانے کی قسم کھائی۔ اس پر قرآنی دلیل بھی ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی اللہ نے قسم کھائی، تو وہاں مراد، تو دیکھیے شہر کی قسم یعنی سرکار کے شہر کی قسم، اور کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرے انور کی قسم کھائی، کہیں آپ کی زلف انبری کی قسم کھائی، کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قلم اور علم و تعلیم کی اللہ نے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ اب یہ بات، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ اللہ نے حضور کی زندگی کی، حضور کی عمر کی قسم کھائی۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کسی چیز کی قسم کھائی، اس چیز کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، اور یہاں اللہ نے زمانے سے قسم کھائی، تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس زمانے کا بھی تعلق مصطفیٰ کریم سے ہے، یعنی اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم کھائی۔ ایک بات سب سے پہلے واضح ہو جائے، اب چونکہ حضور کا زمانہ صرف حضور کے زمانے تک محدود نہیں، قیامت تک آج کا بھی زمانہ یہ حضور کا ہی زمانہ ہے، تب یہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ مطلقاً ہر انسان کا وقت اگر مراد لے لیں آپ، تو یہ بھی کہیں سے کہیں تک کوئی دقت والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو گفتگو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ معنی مراد لینا پڑے گا، تب آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ہر انسان وقت کی جو قدر نہ کرے وہ گھاٹے میں۔ میں اس کو اور مضبوط کروں اور آپ کے سامنے اور آسان لب و لہجے میں کروں۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کی ایک محدود زندگی ہے، ایک مقرر وقت ہے، محدود زندگی ہے ایک، کہ وہ اتنے سال تک جیے گا، اتنے مہینے تک، ہر انسان کی ایک زندگی ہے اور مقرر ہے۔ جب موت آئے گی، جو وقت ہے تو وہ آ کے رہے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے موت آئے گی، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ جس کی جتنی زندگی ہے، نہ کبھی وہ اس سے پہلے مرے گا، اور نہ ہی جتنی زندگی ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ جیے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی زندگی مقرر ہے، محدود ہے، متعین ہے، اور زندگی اللہ نے انسان کو دی، اور پھر کئی باتوں کا اللہ نے پابند بنایا، اللہ نے پابند بنایا زندگی دے کر کہ یہ کرنا ہے۔ جو شخص ان کاموں کو کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ خسارے میں نہیں ہے، اور اگر کاموں کو وہ انجام نہیں دیتا ہے، اگر وہ دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اگر اس کو نبھاتا نہیں ہے،
تو پھر جس وقت وہ اس ذمہ داری سے غفلت برتتا ہے تو وہ وقت انسان کے لیے، وہ زمانہ اس انسان پر خود گواہ ہو جاتا ہے کہ یہ گھاٹے میں ہے۔ اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ انسان دیکھیے، ایک اور حدیث پاک، اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پاک کو سنیے۔ حدیث پاک کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ انسان جب صبح کرتا ہے، انسان جب صبح کرتا ہے تو صبح کرتے ہی ہر انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ بیچنا، خریدنا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کس طور پر؟ اس طور پر کہ اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے، اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کی بدولت وہ اللہ سے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے بیچتا ہے، اور اس کے ذریعے جو اللہ سے خریدتا ہے وہ ہے ثواب اور جنت۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں۔ انسان صبح ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کیسے بیچتا ہے؟ یا تو وہ نیک اعمال کرتا ہے یا برے اعمال۔ اگر اچھے اعمال انسان کرتا ہے تو ان اچھے اعمال کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بیچ کر ان اچھے اعمال کے ذریعے، اعمال بیچ رہا ہے مطلب اپنا وقت بیچ رہا ہے، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے انسان، اس کو بیچ کر اللہ سے ثواب اور جنت خرید رہا ہوتا ہے۔ اور اگر برے اعمال کو انسان کرتا ہے تو گویا کہ اپنے برے اعمال کے ذریعے انسان جہنم خرید رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ حدیث پاک کا مفہوم؟ تو پتا چلا اگر آپ وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تب تو پھر آپ نفع میں ہیں، آپ کو نفع مل رہا ہے، آپ کو کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت کا آپ نے غلط استعمال کیا، اللہ نے جو ذمہ داریاں عائد کی، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اگر ان چیزوں کو آپ بجا نہیں لا رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ گھاٹے میں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ پہلے اس آیت کریمہ کا آپ مفہوم سمجھیں آپ، اور اس کی فضیلت پہلے جانیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عصر، اگر صرف یہ سورت نازل ہو جاتی اور اس کے بعد قرآن میں سے اور کوئی سورت نازل نہیں ہوتی تو پوری امت کی ہدایت کے لیے سورہ عصر صرف کافی ہو جاتی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ سورت ہے کیسی؟ امام شافعی فرماتے ہیں اگر اس کے بعد اور قرآن کی کوئی سورت نازل نہیں ہوتی تو پھر صرف یہ چھوٹی سی سورت، بہت چھوٹی سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اتنی سی سورت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر یہ سورت نازل ہونے کے بعد اگر اور کوئی سورت نازل نہ ہوتی تو پوری امت کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی۔ اسی کو سمجھنا ہے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجیے، دو صحابہ کرام میں سے دو حضرات نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جب بھی ہم دونوں ملیں گے اس سورت پر چرچا کریں گے، اس سورت کے مضمون کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر چرچا کریں گے۔ جب بھی ہم لوگ ملیں گے، یہ طے کر لیا تھا دو حضرات نے۔ اب آپ کو اگر اس سورت کی اہمیت سمجھ میں آئی تو اب آپ سمجھیے، اس سورت میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے کہ جو ان 4 چیزوں کو کرتا ہے وہ خسارے سے بچ جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ خسارے میں ہے۔ نمبر 1 کیا کہا پہلے اللہ نے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لے کر آئے۔ تو جو ایمان لے کر آ جاتا ہے، اب اس میں گھاٹا 4 طریقے سے ہے۔ ایمان لے کر آ گیا، گھاٹا کیا تھا آپ کے لیے؟ نقصان کیا تھا؟ کفر۔ جو ہی آپ ایمان لے کر آئے آپ کفر کے نقصان سے بچ گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ابھی بھی آپ کے اندر نقصان کا مادہ، ابھی بھی آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں، ابھی بھی چانس ہے، ابھی آپ اور نقصان میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ قرآن آگے اور کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ مکمل نقصان سے بچے نہیں ہیں۔ مکمل نقصان کے لیے جہاں آپ ایمان لے کر آئے، آپ کو وہاں پہ وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرنا ہے، اچھے اعمال بھی کرنے ہیں۔ اگر آپ ایمان لے کر آ گئے، مومن تو ہو گئے، آپ کفر کے خسارے سے بچ گئے، لیکن اگر اعمال آپ کے نیک نہیں ہیں تو پھر آپ عملی خسارے میں اب بھی ہے۔ کفر کے خسارے سے بچ گئے پر عمل کے خسارے سے، بدعمالی کے خسارے سے ابھی آپ بچے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو بچنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کریے، تو آپ پھر عمل کے خسارے سے بھی بچ جائیں گے۔ 2 بات۔ تیسری بات، وتواصوا بالحق، حق کی تاکید کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرے، صبر کی تلقین کرے۔ اب یہ حق کی تاکید کیا ہے سمجھیے۔ حق سے مراد یہاں مصطفیٰ کریم کی شریعت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا دین بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ مکمل احکام شرع بھی آپ حق سے مراد لے سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حق سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی لے سکتے ہیں، تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان حق کی تلقین کرے ایک دوسرے کو،
पता चला कि इस कटघरे में कोई मौलाना सिर्फ अकेले नहीं कि वो सिर्फ हक की तलकीन करे, लोगों को कहे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, नहीं, हर इंसान पर कुरान कह रहा है, हर इंसान पर जरूरी है कि वो एक दूसरे को हक की तलकीन करे, एक दूसरे को हक की तलकीन। हक में हुकूकुल्लाह है, दो ही तरह के हुकूक होते हैं दुनिया में आने के बाद इंसान के ऊपर, दो ही तरह के हुकूक आयद होते हैं। हुकूकुल्लाह में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये चीज, और हुकूकुल इबाद में जो निभाना है हुकूक, माँ को माँ का दर्जा देना है, बाप को बाप का दर्जा देना है, बहन को बहन का दर्जा देना है, दोस्त यार को दोस्त यार का दर्जा देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, चुगली, गीबत, हसद, कीना, भूख, इन तमाम चीजों से परहेज करना है, एक दूसरे के साथ, बड़ों के साथ मोहब्बत से, छोटों के साथ शफकत से पेश आना, ये इंसान के हुकूक है, ये इंसान के हुकूक है। तो गोया के जो कुरान कह रहा है कि अगर बचना है तो सबसे पहला काम जो करना है खसारे से बचने के लिए वो ईमान लाना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेकर आए वो खसारे से बच गए। किस खसारे से बचे हैं? अभी सिर्फ आप कुफ्र के खसारे से बचे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप नेक अमाल नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप खसारे में हैं। बस इतना है कि आप कुफरी खसारे से बचे हैं, लेकिन अभी बद अमली के खसारे में हैं। आप हक की तलकीन नहीं कर रहे एक दूसरे को, अभी आप खसारे में हैं। और आप सब्र अगर नहीं कर रहे, एक दूसरे को सब्र की वसीयत नहीं कर रहे, तब भी आप खसारे में हैं। तो अगर आप ईमान लेकर आ गए, अगर आप नेक अमाल कर रहे हैं, अगर आप साथ में हक की तलकीन कर रहे हैं, तो अब चौथी कड़ी जो रही है वह है सब्र की ताकीद, सब्र की तलकीन, सब्र की वसीयत। सब्र क्या है? सब्र की वसीयत का मफहूम क्या है? सब्र हकीकत में इस मफहूम को अगर समझना होगा, अगर आप समझना चाहेंगे तो इस तौर पर कि सब्र का मतलब यह है कि जैसा कि आप इंसान जब ईमान लेकर आया है, जब वो नेक अमल कर रहा है, जब वो एक दूसरे को हक की तलकीन कर रहा है, हक की तलकीन में अम्र बिल मारूफ भी है, नहीं अनिल मुनकर भी है, यानी अच्छी बात का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना। अब जब ये तीन काम आप करेंगे ना, ईमान लेकर आएंगे, तो आप आजमाइश में आएंगे, आप मुसीबत में आएंगे। आपको हमने पिछले जुमा बताया था कि ईमान लाने के बाद इंसान अगर सोचता है कि हम मुसीबत में नहीं, ईमान ये वो मैदान है कि जब कोई मर्दे मुजाहिद आ जाता है, ईमान लेकर आता है, तो फिर अब इस मैदान में आजमाइश से खाली नहीं होता इंसान। आजमाइश हर महला, हर कदम पे है आपके सामने। ईमान लेकर आ गए, आप आजमाइश से आपको गुजरना है। आप नेक अमल कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज का जवाब बनना है आपको, पर आप साथ में हक की तलकीन कर रहे हैं, आप किसी को अच्छी बात बता रहे, बुरी बातों से रोक रहे हैं, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये जो मुसीबतें जब आपके सर पे आएंगी, तो ऐसे वक्त में उन मुसीबतों पर सब्र करना, यह है वह तवासो भी सब्र। आप समझिए इस बात को, यह सब्र है। और सिर्फ मुसीबतों में सब्र आना सब्र नहीं है। किसी के पास दुनिया जहान की नेमतें हैं, आप अल्लाह की इस तकसीम पर सब्र कर रहे हैं, राजी है, अल्लाह ने आपको नहीं दिया है पर आप राजी है कि नहीं, अल्लाह ने जितना हमको दिया है हम उतने पे खुश है, यह है सब्र। मतलब यह है कि खाली खाने पीने से सब्र करना यह सब्र नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात है, उन तमाम चीजों को आप दफा कर दे रहे हैं। आप उस एतबार से नहीं, आप दीन के एतबार से चल रहे हैं, यह सब्र है। कि आप अपने नफ्स की पैरवी नहीं कर रहे हैं, आप दीन की पैरवी कर रहे हैं, यह सब्र है। यह है सब्र। खुद भी सब्र करते हैं, दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं, यह सब्र है। मुसीबत आ जाए तो सिर्फ यह नहीं कि मुसीबत आ गई है। अब आप समझिए, किसी का जवान बेटा अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाए, आपके पास कोई चारा है सब्र करने के? और कोई चारा नहीं है, मगर यह सिर्फ सब्र है। सबसे बेहतरीन सब्र क्या है कि आप इस सब्र के साथ साथ राजी बरजाए रब रहे। मतलब यानी आपका बेटा चला गया, आपने सब्र कर लिया, आपके पास कोई चारा भी नहीं, आप जिंदा नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं, आप मजबूर है। लेकिन इस सब्र पर आपको सवाब तब मिलेगा जबकि आप अल्लाह ताला की इस तकसीम पर, आपके साथ जो मामला हुआ, आप उस पर राजी रहे और खुश रहे अपने परवरदिगार से कि मेरे साथ जो हुआ और जो जवान बेटा मेरा गया, मैं अल्लाह की इस तकसीम पर, मैं अपनी इस तकदीर पर, अल्लाह के इस मामले पर मैं राजी हूं। यह है वाकई सब्र। आप किसी इंसान के या कोई हादसा हो जाए, ऐसी सूरत में इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत को पामाल कर दे, भुला दे, वो होशो हवास में ना रहे वो, और वो ऐसी सूरत में अल्लाह की नाफरमानी कर जाए या अल्लाह की शान में कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर ले, तो वो फिर सब्र नहीं है। सब्र का मतलब यह है कि आप मुसीबत के वक्त बंदे रहे। देखिए, इंसान जब दुनिया में आता है, इंसान, अब आप समझिए कि अगर कोई इंसान ईमान लेकर आ गया है तो ऐसा नहीं है कि वो घाटे से बच गया है। कुरान कहता है कि घाटे से बचने के लिए इंसान को 4 काम करना है, तब इंसान घाटे से बच पाएगा। नंबर 1 ईमान लाना है, नंबर 2 आपको नेक अमाल करने हैं, अच्छे अमाल, नंबर 3 आपको एक दूसरे को हक की तलकीन करनी है,
नंबर 4, आपको एक दूसरे को सब्र की तलकीन करनी है, सब्र की वसीयत करनी है। अगर ये 4 बातें आपके अंदर पाई जा रही है तो आप खास घाटे में नहीं है, आप घाटे में नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से किसी एक चीज से भी चूक रहे हैं तो फिर आप घाटे में हैं। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है। तमाम इंसान घाटे से कौन नहीं है? जिनके अंदर ये 4 बातें हैं। अब आप बताइए कि इंसान ने जिन बातों का हुक्म दिया, जिन जिम्मेदारियों का अल्लाह ने जिन बातों का इंसान को हुक्म दिया, जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने इंसान के ऊपर आयद की, वो कहीं से कहीं तक हमारे मामला समझ में नहीं आते। ना जिन बातों की अल्लाह ने ताकीद की, ना उसमें बहुत सारे पैसे हैं, ना उसमें धन दौलत है, ना उसमें गाड़ी है, ना उसमें बड़े बड़े बंगले हैं, ना कहीं से कहीं तक अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक दुनिया कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। इन 4 बातों में ये बातें है ही नहीं। इन 4 बातों में से एक ईमान है, दूसरा नेक अमल है, और जो इन 4 बातों में पहली बात नेक ईमान है, दूसरी बात जो है वो नेक अमल है, तीसरी बात वो हक की तलकीन, और चौथी बात जो है वो सब्र की वसीयत है। तो ये 4 बातें हैं। अगर किसी इंसान के अंदर ये 4 बातें पाई जा रही है तो फिर वो इंसान नफे में है, समझे, वो बिल्कुल फायदे में है। और अगर वह इंसान 4 बातों में से किसी एक बात पर भी अमल नहीं कर रहा है, तब यहां एक बात और भी समझते चलिए। अगर आपके अंदर सबसे पहली बात नहीं है, ईमान नहीं है, तो फिर उसके बाद चाहे आप नेक अमल करिए, चाहे हक की तलकीन करिए, चाहे आप सब्र की तलकीन करिए, फिर ये तमाम अमाल आपके बर्बाद हैं। क्योंकि हम जो अच्छे काम करते हैं, हमारे बहुत सारे अच्छे काम वो लोग भी करते हैं जो मोमिन नहीं है। तो क्या मतलब इसकी वजह से उसको सवाब दिया जाएगा? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इस दुनिया में रहकर कोई गैर मोमिन, कोई गैर मुस्लिम, जिसके पास इस्लाम नहीं, जिसके पास ईमान नहीं, अगर वो इस तरह का कोई अमल, नेक अमल करता है, अच्छा काम करता है, तो बस इतना होगा कि अल्लाह उसका बदला यही पे दे देगा आखिरत में। ये किसी भी गैर मोमिन के लिए आखिरत में उसके किसी अच्छे काम का कोई बदला नहीं है, ये याद रखिए। आप हदीस पाक को अगर बहुत करीब से देखेंगे, अगर कोई काफिर, अगर कोई मुशरिक, अगर कोई गैर मुस्लिम, वो चाहे किसी दीन धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर वो दुनिया में अच्छा काम करता है तो अल्लाह उसको दुनिया ही में उसका बदला देता है। अगर कुछ चीजें रह जाती है, वो और ज्यादा अच्छा काम करता है, तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह उसके साथ भलाई इस तरह फरमाता है कि मौत के वक्त उसके ऊपर से मौत आसान कर देता है अल्लाह। बस उसको जितना मिलना होता है, मौत से पहले अगर कुछ रह भी जाए तो मौत के वक्त में उसके ऊपर मौत आसान कर दी जाती है। बस बाकी आखिरत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा है, दूसरे का कोई हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले ईमान होना पड़ेगा। ईमान सबसे पहली चीज है। ईमान के बाद ही आपके दूसरे अमाल काम आएंगे। तो ये बहुत, एक देखिए, इंसान जब दुनिया में आता है, अब आप इस चीज को समझिए कि 4 बातें हैं, लेकिन इसको आप 3 बातों में समेट सकते हैं। देखिए, एक ईमान है, एक अमल साले है, और एक हक और वसीयत की तलकीन। अब हम अलग तरीके से बोल रहे हैं। ईमान नंबर 1, नंबर 2 अमल साले, नंबर 3 में हम दोनों कह रहे हैं हक और वसीयत की तलकीन। आप समझ रहे हैं? अब इस बात को और करीब आके समझिए। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो 3 चीजों को लेकर, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो एक जिस्म है, एक रूह, और तीसरी चीज जो है वो रिश्ता है। किसी का बेटा आया है, किसी का भाई है वो, किसी का भांजा है वो, किसी का नवासा है वो, किसी का पोता है वो, किसी का भांजा है वो। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक रिश्ता है, और इसी रिश्ते को अगर मखलूक से हटाकर खालिक से जोड़ो तो अल्लाह का बंदा है वो। आप समझिए इस बात को। अब इंसान इस दुनिया में आया 3 चीजों को लेकर, रूह, जिस्म और रिश्ता। रूह के लिए अगर कोई चीज ग़िज़ा है तो इस कुरान पाक की सूरत के मुताबिक वो इल्लल्लज़ीना आमनू है। आप समझिए इस बात को। रूह की ग़िज़ा इल्लल्लज़ीना आमनू। अगर आप ईमान लेकर आ गए तो समझ लीजिए कि आप आखिरत में इस रूह को सुकून देने के लिए आपने ग़िज़ा तैयार कर ली। ईमान आप लेकर आ गए, आखिरत का आपका हिस्सा हो गया। अब आपके रूह के लिए आखिरत का हिस्सा हो गया। आपकी रूह को आखिरत के लिए एक सुकून मिल गया। वो ग़िज़ा क्या है? वो ईमान है। दूसरी चीज, इंसान जिस्म लेकर आया। जिस्म, इस जिस्म को सुकून दिलाने के लिए नेक अमाल है, अच्छे अमाल है। आप अच्छे अमाल करेंगे, अगर आप अच्छे अमाल करते रहते हैं, बुरे अमाल नहीं करते हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं, आखिरत में कोई रोक टोक नहीं, आप सीधे जन्नत जा सकते हैं। आप समझिए। तो
एक नेक अमल का ताल्लुक आपके आजाद जिस्म जवारे, आप समझिए। और एक तीसरी चीज जो है वो है रिश्ता। ये सबसे मुश्किल काम है, रिश्ता। एक तो इंसान का रिश्ता इंसान से होता है, मखलूक से होता है, कि वो किसी का बेटा है, वो किसी का पोता है, किसी का नवासा है, वो किसी का भांजा है, किसी का छोटा भाई है, किसी का बड़ा भाई है, किसी का चचा भी लगता है। अब देखिए ये रिश्ता है इंसान का इंसान से, और एक रिश्ता होता है इंसान का अपने परवरदिगार से, कि वो बंदा है अपने रब का, वो बंदा है अपने माबूद का, वो बंदा है अपने परवरदिगार का। तो आप समझिए इस चीज को, इंसान वहां तक ईमान और नेक अमल तक जिस्म और रूह का ताल्लुक। अब जहां बात आती है रिश्ते की, तो अब इंसान को दो तरीके से निभाना है। अपना रिश्ता अल्लाह से भी मजबूत करना है, आप समझिए, अल्लाह से भी मजबूत करना है। अल्लाह से मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको ईमान लाना पड़ेगा, और फिर उस ईमान लाने के बाद आपको सुबह शाम 5-5 मर्तबा नमाज की सूरत में इसका सबूत देना पड़ेगा कि आपका रिश्ता अल्लाह से है। आपने अल्लाह से जो रिश्ता कायम किया है, आपने जो कलमे शहादत पढ़ के अल्लाह से अपना रिश्ता कायम किया है, आप उस रिश्ते पर कायम है, यह सबूत देने के लिए आपको 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में आना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को, ये इस रिश्ते को सबूत देने की दलील है ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात। गोया के इल्लल लदीना आमनू, ये आपका दावा है, आपने एक दावा किया हम मुसलमान हैं। अब इस पर जो दलील है वो अमिलुस सालिहात, ये नेक अमल, ये दलील है इस दावे पर। गोया कि आपने जो अपना रिश्ता अपने रब से जोड़ा है, उस रिश्ते को आप अमल साले के जरिए हर दिन ताजा कर रहे हैं, हर दिन साबित कर रहे हैं आप अमल साले के जरिए। अब अमल साले में सिर्फ नमाज नहीं है, अमल साले में सिर्फ रोजा नहीं, अमल साले में सिर्फ हज नहीं है, अमल साले में सिर्फ रोजा ज़कात ये नहीं है, अमल साले में झूठ ना बोलना भी है, सच बोलना। अमल साले में गीबत ना करना भी अमल साले है, आप समझ रहे हैं। ये इन चीजों से, बुराइयों से रुकना इंसान का, ये भी एक अमल साले है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बयान में कहा था, इंसान अगर फराइज को अदा करता है, इंसान अगर फराइज को अदा कर लेता है, और फिर उसके बाद इंसान अगर एक दूसरे को तकलीफ देने से अगर बच जाता है, तो समझो कि वो इबादत के मरहले में है। इंसान फराइज को अदा कर लिया, नमाज रोजा हज ज़कात कर रहा है, और उसके बाद और कुछ कर नहीं रहा है, नफल कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फराइज जो जरूरी है उसी को किया। उसके बाद चुपचाप इंसान अपने काम से काम रखा, बस इतना किया कि अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया, किसी की बुराई नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, किसी की चुगली नहीं की, किसी की गिबत नहीं की, किसी से हसद नहीं किया, किसी से बुग़्ज़ व कीना नहीं रखा, किसी को परेशान नहीं किया, एक दूसरे के हुकूक अदा किए। बस इंसान को कुछ करना नहीं है, सिर्फ दूसरे को तकलीफ देने से अपने को बचा लेना है, दूसरे को तकलीफ नहीं देना है। समझो इंसान इबादत के मरहले में है, मुसलसल इंसान इबादत में है। आप समझिए इस बात को, इंसान सबसे ज्यादा, मैं वही कह रहा था कि हक से मुराद हुकूकुल्लाह भी है। हमने आपको इसीलिए कहा था कि हक से मुराद हुकूकुल्लाह भी है और हक से मुराद हुकूकुल इबाद भी है। हुकूकुल्लाह की अदायगी के लिए जब आप ईमान लेकर आ गए हैं, आप इल्लल लदीना आमनू के तहत आ गए, तो अब आप इल्लल लदीना आमनू इस दावे पर कायम रहने के लिए, इसको सबूत देने के लिए कि आप जो दावा किए हैं, आप अपने दावे पर साबित है, आपने जो अपने रब से रिश्ता जोड़ा है, आप इस रिश्ते के सबूत के लिए अब आपको अमल साले करना है। ये इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात। और फिर उसके बाद हक की तलकीन और सब्र की जो ताकीद है, इस बात को समझने के लिए एक ये है कि जो आपने रिश्ता जोड़ा है, और एक तो अपने रब से रिश्ता है जो आपको वो साबित करना है। वो किस तरह से साबित करना है? हुकूकुल्लाह को अदा करके, नमाज रोजा हज ज़कात, इन चीजों को अदा करके आपको अपने रब से रिश्ता वो साबित करना है, उसको आपको बरकरार रखना है। ये जो आप ईमान लेकर आए उस पे आपको एक दूसरी जगह कुरान ने क्या, या अय्युहल लदीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान पर साबित कदम रहो, ऐ ईमान वालो ईमान पर साबित कदम रहो। क्या मतलब है? ईमान लेकर आ गए हो, अब साबित कदमी किस पर है? सिर्फ इसलिए कि नहीं हाँ हम तो मोमिन है, नहीं, ईमान पर साबित कदमी यह है कि इस्लाम ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन बातों को आप बजा लाए, जिन चीजों से रोका है उन चीजों से आप रुक जाए। यह है हकीकत में सिबात कदमी, यह है हकीकत में आपका दीन के मामले में इस्तिकामत फिर दीन, यह है आपके अंदर। तो ये बात पाई जानी चाहिए। तो ये है आपने एक ये रिश्ता अपने रब से है और एक रिश्ता मखलूक का मखलूक से है। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो वो किसी का बेटा होता है, वो किसी का भाई भी होता है, किसी का नवासा भी, किसी का भांजा भी, किसी का पोता भी। तो अब जब आपका किसी से रिश्ता है और आप मखलूक है, मखलूक से एक दूसरे का रिश्ता है, तो अभी रिश्ते को भी निभाना पड़ेगा, एक दूसरे के हुकूक आपके ऊपर आएंगे। इंसान सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, कल मैदान महशर में इंसान सबसे ज्यादा हुकूकुल इबाद की वजह से फंसेंगे इंसान।
सबसे ज्यादा। हमने पूरे बयान में आपको बताया था, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर हमने पूरा आपके सामने बयान रखा है। तो याद रखिए, ये जो कुरान पाक की ये सूरह मुबारका, सूरह अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, बेशक इंसान जरूर घाटे में है। यहां तक कायनात का हर इंसान शामिल है इसमें, मुसलमान भी घाटे में है। यहां तक, सिर्फ कुरान की यहां तक, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी, दुनिया जहान के जितने दीन धर्म के मानने वाले हैं, पूरी बनी नौ, पूरी इंसानियत यहां शामिल, यहां तक कि सब घाटे में है। लेकिन जो ही कुरान कहता है इल्लल लज़ीना आमनू, जब आप ईमान लेकर आ गए तो अब आप एक घाटे से बच गए, कुफ्र के घाटे से, कुफ्र के खसारे से, कुफ्र के नुकसान से। अब आप एक, आपके सामने एक तीसरा घाटा है, एक तीसरा नुकसान है, वह है बुरे अमाल से बचना, अच्छे अमल करना। जो ही आप वो आमिलुस सालिहात के मरहले में पहुंचते हैं, अब आप नेक अमल करने लगते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि अब आप तीन तरह के घाटे से बच गए। कुफ्र के घाटे से बच गए आप ईमान लाने के दो तरह के घाटे से, ईमान लेकर आते हैं, उसके बाद आप नेक अमल करने लगते हैं, तो बद अमाली के आप घाटे से बच जाते हैं। एक तीसरी चीज, जब आप हक की तलकीन करते हैं, हक की तलकीन में जाहिर सी बात है, हमने आपको कहा हक से मुराद दीन भी है, दीन हक, दीन मतीन। अब यहां मुराद साफ लफ्जों में अगर आप कहना चाहेंगे तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना, खुद को भी और दूसरे को भी। पता चला कि यह काम सिर्फ उलमा का नहीं है, मुसलमान, हर मुसलमान पर कुरानी आयत ये इस बात की तरफ दलील है, इस बात पर दलील है कि हर मुसलमान एक दूसरे को वसीयत करे, एक दूसरे को नसीहत करे, एक दूसरे को हक की तलकीन करे। ये कुरान की आयत कह रही है। पता चला कि ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, सिर्फ किसी आलिम की जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहता हूं आप यहां बैठ के नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बाहर रहेंगे, आपने किसी को गलत करते हुए देखा, वहां तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप दूसरे को रोकें। तो ये चीज है। तो अगर आप ईमान लेकर आ गए तो कुफ्र के घाटे से बच गए। नेक अमाल, अगर अच्छे अमाल आप करने लग गए तो समझ लीजिए कि आप बुरे अमाल के घाटे से, नुकसान से बच गए। अगर आप हक की तलकीन करने लग गए तो फिर आप ये कि आप दीन पर अमल करने के बाद बिल्कुल दीन से बेजार है कि ना खुद अमल करते हैं ना दूसरे को तलकीन करते हैं, आप बेजारी दीन से बच गए। और अगर आप साथ में एक दूसरे को वसीयत भी करते हैं, सब्र की वसीयत भी करते हैं, सब्र की वसीयत का मफहूम हमने आपको बता दिया कि सब्र की वसीयत का मफहूम सिर्फ ये नहीं कि आपको सब्र कर लेना है, आपके घर कोई हादसा हो जाए तो आपको सिर्फ खामोश रह जाना है, आप उस हादसा को टाल भी नहीं सकते हैं, सिर्फ सब्र का इतना मफहूम नहीं है। सब्र का एक मफहूम और भी है कि आप उस हादसा की वजह से अल्लाह के इस मामले पर, अल्लाह की इस तकसीम पर राजी भी रहे, खुश भी रहे, यह है वाकई सब्र। तो ये चीज है। मैं आपके सामने एक और मिसाल दे दूं सब्र के लिए। अगर आपको किसी ने, बहादुर आदमी ने एक कमजोर आदमी को एक तमाचा मार दिया, बिल्कुल कमजोर आदमी, ऐसे बिल्कुल सिंगल पसली का आदमी, उसको किसी बहादुर आदमी ने जो जिम वगैरह करता है उसने मार दिया एक तमाचा, तो अब वो जवाब दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। कमजोर आदमी है वो, उसको पता है अभी एक मारूंगा तो चार और पड़ जाएंगे हमारे ऊपर। तो आप कहोगे कि अरे अच्छा आदमी है, सब्र कर लिया। सब्र नहीं किया, ये सब्र नहीं है, वो मजबूरी है। इसको सब्र नहीं कहते हैं, इसको मजबूरी कहते हैं। ताकत होती तो शायद जवाब दे देते। सब्र क्या है? सब्र यह है कि ये पतला आदमी उस जिम वाले आदमी को मारता और फिर वो कुछ नहीं कहता तो वो सब्र माना जाता। आप समझ रहे हैं? तो सब्र बड़ा अलग मामला है, अपने अंदर एक लंबा मफहूम लिया हुआ है। ये कुरान जो कहता है कि सब्र करना है मुसीबत के वक्त। हमने आपको बता दिया, जब आप दीन की तबलीग करेंगे तो मुसीबत आपके सर पे आएगी। जब आप ईमान लेकर आएंगे तो आप आजमाइश के मरहले में आ जाते हैं। तो जो आजमाइश आए वहां सब्र करना, यह है वतवासो बिस सब्र। जब आप नेक अमल करेंगे तो नेक अमल के दौरान आप आजमाइश के मरहले में आएंगे, आजमाइश के मरहले से गुजरेंगे, तो जो वहां आप सब्र करेंगे, यह है वतवासो बिस सब्र। फिर आप जब दीन हक की तलकीन करेंगे, आप दीन हक की तलकीन करेंगे, अच्छी बातों का हुक्म देंगे, बुरी बातों से रोकेंगे, यहां आपको आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। वहां जो आप सब्र करेंगे, यह है वतवासो बिस सब्र। तो ये कुरान पाक की ये सूरह मुबारका जो इमाम शाफी ने फरमाया, अगर इनकी इस बात को समझना है तो इस पूरी तकरीर का खुलासा आपको समझना पड़ेगा। फिर जो इमाम शाफी ने फरमाया कि अगर इस सूरत के बाद कुरान की कोई सूरत नाजिल ना होती तो पूरी उम्मत की हिदायत के लिए ये सूरत काफी हो जाती। अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ सूरत, हालांकि ऐसी बात नहीं है, कुरान की एक एक आयत, कुरान का एक एक हर्फ अपने अंदर एक समुंदर लिए हुए है। वो अलग बात है कि हम कासिर है उन तमाम बातों को समझने से, हमारे अंदर उतनी वसअत नहीं है कि हम कुरान को कमा हक़ समझ पाए। इंसान की बस की बात नहीं है। बस ये है कि जो अल्लाह के रसूल ने बता दिया, जो मुफस्सिरीन ने, सहाबा किराम ने, ताबईन ने जो बता दिया, वो माना मफहूम हम आपके सामने रखते हैं। वरना इंसान की बस की बात नहीं है कि कुरान को वैसा समझे जैसा अल्लाह ने उतारा है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंसान की बस से बाहर की बात है ये।
समझ रहे हैं? हाँ, ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने जिन महबूब बंदों के ऊपर इन बातों को वाजे किया, उन महबूब बंदों ने जो बताया वो बातें आपके सामने हमारे सामने आ रही है। बोलने में लग्जिश हुई इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।